جی السلام علیکم، کیسے ہو بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ابھی آپ نے آپ کا انگلش کا لیکچر پڑھا ہے نا، انگلش سیکھا، کھیلوں کے نام سیکھے، بہت اچھا لیسن تھا۔ اب جو ہے جس طرح آپ نے ابھی سارے جوابات دیے انشاءاللہ آگے بھی دیں گے، ہے نا۔ جی چلیے میں اپنا تعارف کراتی چلوں۔ میرا نام آفرین خان ہے، میں محمدی اردو پرائمری اسکول بھانڈوپ سے تعلق رکھتی ہوں۔ بچوں آپ نے ابھی انگلش پڑھا تو تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے، ہم نیکسٹ سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے سبجیکٹ کا نام ہے پلے ڈو لرن، یعنی کھیل کھیل میں سیکھے۔ تو بچوں ہم کو کھیل کھیل میں سیکھنا ہے نا، لیکن کچھ بھی کام کرنے سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں، پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ چلیے دعا پڑھیں گے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ٹھیک ہے بچہ، چلیے تو میں آپ کو جو ہے چند تصاویر دکھاؤں گی، آپ کو ان کے نام جو ہے چیٹ باکس میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس چیز کی تصویر ہے بچوں؟ جی جی یہ ہے آنکھیں، ہماری آنکھ ہے نا، یہ ہے آنکھ۔ ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ پکچر دیکھتے ہیں، اگلی تصویر کی جانب۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ ناک، یہ ہے ناک۔ یہ جو ہم نے ابھی آنکھ دیکھی، ناک دیکھی ہے نا، اب ہم اگلی تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ بہت اچھے بچوں، جی یہ ہے کان، ویری گڈ، یہ کیا ہے؟ کان۔ اگلی تصویر دیکھیے، یہ کیا ہے؟ اس میں ایک چیز نہیں ہے، جی زبان ہے، دانت ہے، ہونٹ ہے۔ اب زبان، دانت، ہونٹ یہ سب ملا کے کیا بنا؟ کیا بنا بچوں؟ منہ، بہت اچھے، اسے کہتے ہیں منہ، یہ ہے ہمارا منہ۔ چلیے اگلی تصویر کیا ہے؟ کس چیز کی تصویر ہے یہ؟ ہاتھ، یہ ہے ہاتھ، ویری گڈ، یہ ہے ہاتھ۔ اگلی تصویر لکھیے، چیٹ باکس میں لکھیے بچوں، کیا ہے یہ؟ پیر، یہ ہے پیر، بہت اچھا، بہت اچھے بچوں۔ تو یہ ہم نے کیا دیکھا بچوں؟ ہم نے آنکھ، ناک، کان، منہ، ہاتھ، پیر، یہ سب کیا ہے؟ کیا چیزیں ہے یہ؟ یہ ہے ہمارے جسمانی اعضاء، مطلب ہمارے اعضاء ہے یہ، جس سے ہم حرکت کرتے ہیں، چلتے، کھاتے، دیکھتے، سنتے ہے نا، سونگھتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں، یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازی ہے، صحیح سلامت ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے جسمانی اعضاء ہے۔ اب بچوں جسمانی اعضاء ہم نے دیکھے، اب جسمانی اعضاء کی جو ہے کچھ حرکات ہوتی ہے، کچھ حالات ہوتی ہے، کچھ حالت ہوتی ہے ان کی، جیسے اس سبق میں ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ ہم جو ہے جسم کی مختلف حرکات یعنی کچھ ایکشنز کس طرح ہونے چاہیے اور وہ کس طرح صحیح ہونا چاہیے، اس کا بھی بہت فرق پڑتا ہے، ہاں، اور ہمیں اس کی حالت دیکھنی ہے۔ تو ہمارے سبق کا نام ہے مختلف حرکات اور مناسب جسمانی حالت۔ تو چلیے بچوں ہم آگے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو تصویر دکھائی دے گی، لڑکا کیا کر رہا ہے بتائیے، چیٹ باکس میں لکھیے، یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا کر رہا ہے بچہ؟
हाँ खड़ा है, और ये बच्चा झुका हुआ है। ये बच्चा झुका हुआ तो है, लेकिन कहाँ झुका हुआ है, किस जानिब झुका हुआ है? सामने की जानिब। ये बच्चा सामने की जानिब झुका हुआ है। तो ये जो हरकत है, ये जो बच्चा एक्शन कर रहा है, इसे कहते हैं सामने की जानिब झुकना। देखिए हमारा हाथ इस्तेमाल हो रहा है, इसमें हम आगे की तरफ झुके हैं, हाथ से टच करना चाह रहे हैं, है ना। चलिए, इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है आपको? जी, इस तस्वीर में जो है, एक जो है बच्चा अपने दाएं जानिब मुड़ रहा है, और एक बच्चा बाएं जानिब मुड़ रहा है। तो ये जो बच्चे मुड़ रहे हैं, बच्चों की इस हरकत को हम कहेंगे बाजू की जानिब झुकना। दाएं जानिब झुकना, बाएं जानिब, यानी बाजू की जानिब झुकना। नेक्स्ट हरकत यानी नेक्स्ट एक्शन देखेंगे हम। ये बच्चा क्या कर रहा है? ये भी झुका हुआ है, लेकिन किस सिमत झुका हुआ है, किस जानिब झुका हुआ है? यस, ये बच्चा जो है पीछे की जानिब झुका हुआ है। पीछे की जानिब, अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए पीछे की जानिब झुका हुआ है। चलिए अगली तस्वीर देखें। ये बच्ची क्या कर रही है? क्या कर रही है, क्या लगता है आपको? ये लड़की जो है अपनी एड़ी, जो हमारे पैर की एड़ी होती है, उसके ऊपर घूम रही है गोल। आप भी करते होगे इस तरीके से, एड़ी को नीचे टेकते हैं, पंजा नहीं, एड़ी टेकेंगे और पूरा गोल घूमेंगे। तो इस हरकत को कहेंगे एड़ी के बल घूमना। चलिए अब अगली तस्वीर की जानिब बढ़ेंगे। अब ये बच्चा जो क्या कर रहा है, चल रहा है, चल तो रहा है, लेकिन किस तरह चल रहा है? आप उसके पीछे लाइन देख सकते हो, लकीर है, यानी वो बच्चा इस तरीके से आया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर। तो इस तरीके का जो ये चलना है, इस चलने को हम कहेंगे बल खाकर चलना, यानी थोड़ा सा मुड़ मुड़ के चलना, बल खाकर चलना। जी अगली तस्वीर देखिए, इसमें भी लड़की कुछ कर रही है। अब उसने अपनी एड़ी नहीं, अपना पूरा पंजा टेका है और पंजे पे घूम रही है। इसे कहेंगे पंजों के बल घूमना। ये जो तस्वीर है इसे कहेंगे, ये जो हरकत है इसे हम कहेंगे पंजों के बल घूमना। देखिए अब आपके सामने कुछ और हरकत आएगी। ये जो है चल रहा है। देखिए ये एक खेल है, इसमें पैर लंबे रखते हैं, हाथ एक के ऊपर एक अलग अलग तरीके से हम चेंज करते जाते हैं, बदलते जाते हैं, और एक बच्चा इसके ऊपर कूदता है। ये भी एक तरीके की हरकत है। ये देखिए, एक बच्चा झुका हुआ है, घुटने पे हाथ होता है, और दूसरा उसके ऊपर से छलांग लगाता है, और ये लड़का फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर होते जाता है। ये भी एक तरीके की हरकत है। बच्चों ये मुनासिब हरकत जो है, मुख्तलिफ हरकत हमने देखे, इस इन हरकत को जो है हम करने से हमारा जिस्म फुर्तीला होता है, क्योंकि हम वर्जिश करते हैं रोजाना। तो रोजाना वर्जिश करने से हमारा जिस्म फुर्तीला होता है, चुस्ती फुर्ती आती है ना। तो अब इन हरकत के अलावा दीगर हरकत भी होती है। जैसे देखिए हरकत की नकल, यानी जानवरों की चाल। अभी जो हमने हरकत देखी थी वो हम खुद कर रहे थे, लेकिन अब जो हम हरकत देखेंगे वो जानवरों की नकल है। अब आपको देखना है और पहचानना है कि किस जानवर की नकल है। देखिए क्या लग रहा है आप, ये किस जानवर की नकल कर रही है? जी, खरगोश की। खरगोश जिस तरह छलांग लगाता है ना, उसी तरह हम छलांग लगाएंगे। तो अगर हम उसी तरह करेंगे तो ये हो जाएगी खरगोश छलांग। ये भी हमारी एक तरीके की हरकत है, हमारा जिस्म फुर्तीला बनेगा। छलांग लगाएंगे रैबिट की तरह, खरगोश की तरह, है ना बच्चों। बहुत मजा आता है, ये भी एक तरीके का खेल है। चलिए अगली तस्वीर देखिए। हम्म, इसमें भी बच्चा कुछ कर रहा है। ये भी किसी ना जानवर की, किसी की तो नकल है। किसकी नकल उतार रहा है? बत्तख।
जी बच्चों, ये है बतख। ये बतख की तरह चलता है, एक पैर ऊपर फिर दूसरा पैर नीचे, इस तरीके से चलेंगे तो ये हो जाएगा बतख चाल। ये भी एक तरीके की हरकत है, खेल है, जिसे खेलते हैं, नकल करते हैं बच्चे, और बहुत मजा आता है। चलिए अगली तस्वीर की जानिब बढ़ते हैं। ये बच्ची क्या कर रही है? क्या कर रही है? किसकी नकल कर रही है? जी चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, बहुत अच्छे। किसकी? कंगारू। वेरी गुड। कंगारू की तरह हाथ आगे करके फुदक रही है ना? कंगारू कैसे फुदकता है, उसी तरह उसकी नकल कर रही है। तो ये हुई कंगारू छलांग, क्योंकि वो कंगारू की तरह छलांग लगा रही है। चलिए आगे देखते हैं। ये बच्चा पूरा उल्टा है, हाथ पूरे पीछे है, जमीन पर टेके हुए है। ऐसा कौन कौन करता है ऐसा? किसकी नकल कर रहा होगा? जी जी, देखिए क्या है ये? केकड़ा। ये केकड़े की नकल कर रहा है, केकड़े की चाल है, इसे कहेंगे केकड़े की चाल। ये जो है केकड़े की चाल चल रहा है। देखिए अगली तस्वीर में हम देखेंगे ये बच्चा क्या कर रहा है। ये बच्चा जमीन पर बैठा है, दोनों हाथ जमीन पर रखे हुए हैं। जी देखिए, ये बच्चा किसकी नकल कर रहा है? क्या है ये? कौन सा जानवर है? मंकी। बंदर। बंदर की तरह दोनों पैर जमीन पर, हमें बैठ जाना है, दोनों हाथ जमीन पर रखना है, और बंदर की तरह। बंदर क्या करता है? एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाता है, अगर जमीन पर है तो फुदकते हुए चलता है। आपको पता है ना, इस तरीके की रेस होती है। देखिए ये बंदर छलांग है, इस तरीके की बच्चों रेस होती है, मुकाबले होते हैं। फ्रॉग रेस सुना होगा आपने, मेंढक। तो एक जगह से जो है मेंढक की तरह नकल करते हुए बच्चे दूसरी जगह जाते हैं, जो बच्चा पहले पहुंचेगा वो बच्चा जीत जाएगा। तो ये जो है बच्चों हरकत है, मुख्तलिफ हरकत है, लेकिन किनकी हरकत है? पहले हमने देखे कि हम जो है खुद की हरकत, जो हम अपने हाथों से करते हैं, हमारे पैरों से करते हैं, है ना? हम जो है पंजों के, एड़ी के बल घूमते हैं, पंजों के बल घूमते हैं, हाथ को आगे की जानिब झुकाते हैं, पीछे जानिब झुकाते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि हम बंदरों की, जानवरों की, कंगारू की, है ना, बतख की, इनकी जो है नकल करते हैं। तो ये नकल भी है एक तरीके की हरकत। बच्चों हम जो देख रहे हैं, हम क्या देखे? हमने मुख्तलिफ हरकत देखे, है ना? अब जो हमने देखे खुद की हरकत, जानवरों की नकल के साथ की जाने वाली हरकत। अब जो अगले हम देखेंगे वसाइल और साथी की मदद से की जाने वाली हरकत, यानी किसी चीज के साथ हमको कुछ हरकत करना है। यानी देखो, गेंद का टप्पा लेना। अब अगर हम गेंद के साथ कोई हरकत करेंगे तो गेंद को टप्पा, आपको सबको बहुत पता है कि टप्पा क्या होता है। यानी बॉल को अगर हम जमीन पर या किसी चीज पर पटकते हैं वो उछल जाता है, टप्पा होता है वो, कहते उसे हम कहेंगे टप्पा। तो टप्पा लेना। तो अब हम देखेंगे कि गेंद को टप्पा लेते हुए किस तरीके से हम और मुख्तलिफ हरकत कर सकते हैं। देखिए इस तस्वीर में क्या हो रहा है? जी जी, इस तस्वीर में जो है एक लड़की गेंद को फेंक रही है और दूसरी उसको कैच करेगी, पकड़ेगी। यानी ये जो है टप्पा ले रहे हैं। एक लड़की जमीन पर बॉल को टप्पा देगी, फेंकेगी, वो बॉल जो टप्पा खाकर दूसरी बच्ची के हाथ में जाएगी। तो इसे कहेंगे टप्पा पास, यानी टप्पा लेकर पास करना। जी बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे से आप सुन रहे हो। जी जी, अगली तस्वीर देखिए। इसमें बच्चा क्या कर रहा है? इसमें जो है बच्चा
गेंद, हाँ, गेंद को जमीन पर पटक रहा है। हम जो है इस तरीके से खेलते हैं ना, बॉल हाथ में लेते हैं, जमीन पर पटकते हैं, बॉल टप्पा खा के ऊपर आती है, फिर हम पटकते हैं, फिर वो जमीन पर जाती है। इस तरह के जो खेल होता है उसे जमीन पर टप्पा पास कहते हैं, यानी जमीन पर टप्पा खाती है, ऊपर आती है। ये भी एक तरीके की हरकत है। ये जो है गेंद की मदद से की जाने वाली हरकत है। देखिए अगली तस्वीर में भी गेंद के साथ हरकत हो रही है, लेकिन कैसी हरकत है, इसमें क्या हो रहा है? जी, इस तस्वीर में क्या हो रहा है? हाँ, बच्चा जो है पैर से बॉल को मार रहा है, यानी हम अब पैर से हरकत कर रहे हैं। तो इससे हो, ये कहेंगे हम इससे पैर से मारना। टप्पा तो खाएगा बॉल, बॉल को तो मार रहे हैं लेकिन पैर से मार रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अगली तस्वीर की जानिब बढ़ेंगे बच्चों। अगली तस्वीर देखिए, इसमें बच्चा क्या कर रहा है? जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। बॉल जो है बॉल को पकड़ रहा है, लेकिन बॉल को पकड़ रहा है, पहले उसने क्या किया होगा? सामने दीवार नजर आ रही है, दीवार पर देखिए उसने बॉल को टप्पा दिया होगा, फेंका होगा, दीवार पर मारा होगा, फिर वो बॉल उसके हाथ में आ गई। ये खेल है दीवार पर मारना। इस खेल को हम कहेंगे दीवार पर मारना। जी, देखिए इसमें भी जो है बच्चा, दो बच्चे नजर आ रहे हैं। दो बच्चे क्या कर रहे हैं? बॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे हैं ना, एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं। तो इस हरकत को क्या कहेंगे? पैरों से ढकेल कर पास करना। बहुत अच्छे। एक तो है दीवार पर मारना, पैरों से ढकेल कर पास करना। वेरी गुड। तो बच्चों, आपने जो देखे वो मुख्तलिफ हरकत थी। कभी हमने खुद से हरकत किए, कभी हमने जानवरों की मदद नकल करके हरकत किए, कभी हमने वसाइल की गेंद की मदद से हरकत की। अब हरकत जो है जितने सही तरीके से होना चाहिए जरूरी है, हमारे जिस्म को फुर्तीला रखने के लिए जरूरी है, उसी तरह हमारे जिस्म की जो है मुनासिब हालत भी होनी चाहिए। यानी हम जो है कुछ काम करते हैं, लेकिन उस काम को सही तरीके से करना, सही हालत में होना, वो भी बहुत ज्यादा हमारे जिस्म के लिए जरूरी है। तो देखिए तस्वीर में क्या नजर आ रहा है आपको, बच्ची क्या कर रही है? जी, क्या कर रही है बच्ची? खड़ी है। अब बच्ची खड़ी तो है, लेकिन किस तरह खड़ी है? कैसे? कुछ हरकत कर रही है वो? नहीं, वो क्या कर रही है? सीधा खड़ी है, एकदम स्ट्रेट, सीधा। इस तस्वीर में क्या कर रही है बच्ची? यहाँ भी खड़ी है, लेकिन कैसे खड़ी है? जी, उसका सर नीचे है, मतलब वो थोड़ा सा झुक कर खड़ी है। बहुत से बच्चे जो है बहुत क्या करते हैं बच्चों, खड़े तो रहते हैं। खड़े रहने की भी हमारी एक हालत होती है। हमें किस तरह खड़े रहना चाहिए? अपनी पीठ सीधी रखनी चाहिए, हाथों को नीचे, सीधा सर सामने रखना है। तो हमारे जिस्म की मुनासिब हालत होनी चाहिए, इस तरीके से झुककर हमें नहीं खड़े रहना चाहिए। तो दोनों में से कौन सी हालत सही होगी? कौन सी? जी, बहुत अच्छे बच्चों, कौन सी हालत? ये वाली, ये वाली हालत सही है। क्यों? क्योंकि इसमें खड़े हैं हम, इससे हमारे जिस्म को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये जो हालत है वो गलत है। हमको इस तरीके से नहीं खड़े होना है बच्चों, हमें सीधा खड़े रहना है। हाँ, ये तो हो गई हम किस तरह खड़े रह सकते, खड़े रहने में हमारी जिस्मानी हालत किस तरह सही होनी चाहिए, ये हमने देखे। अब अगली तस्वीर में हम क्या देखेंगे? बच्ची बैठी है। बैठी तो है, लेकिन किस तरह बैठी है? किस तरीके से बैठी है? जी, हाँ, पैर को मोड़ी है,
अपने हाथों को घुटने पर रखी है और स्ट्रेट बैठी है, टाइट बैठी है। पैर मोड़कर हमें दो जानू, जो हम मांडी करके बैठते हैं, बोलते हैं ना। बिल्कुल उसी तरह ये बच्ची भी बैठी है। चलिए अगली तस्वीर में देखें बच्ची क्या कर रही है। इसमें भी बच्ची बैठी है, पैर फोल्ड कर मोड़ कर ही बैठी है, हाथों को भी सामने रखी है, लेकिन अपने सर को नीचे झुकाए हुए है, थोड़ा सा पीठ गोल है, थोड़ी सी झुक कर बैठी हुई है। तो क्या बच्चों हमको इस तरह बैठना चाहिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बैठते हैं तो हमको बैठने में भी हमारी हालत सही रखनी है, क्योंकि हमें बैठने में भी अगर गलत हालत में बैठेंगे तो उससे भी हमको बहुत नुकसान होते हैं। देखिए, सही तरीके से पीठ सीधी, पैर मोड़कर और सीधा, टाइट बोलते हैं ना, एकदम स्ट्रेट, उस तरह हमको सर जो है सामने रख के हमको बैठना है। जी। तो बच्चों, आप बताओ कि इसमें से कौन सी हालत सही होगी और कौन सी गलत? जी, जी बच्चों, बहुत अच्छे। ये हालत, ये क्या होगी? सही। ये सही हालत है बच्चों, हमको इसी तरह बैठना चाहिए। अगर कोई बच्चा झुककर बैठता है तो वो हालत होगी गलत। अगर आदत है बैठने की इस तरीके से, अपनी आदत बदलिए। क्यों बच्चों, ये हालत क्यों हम आपको बता रहे हैं, मुख्तलिफ हरकत क्यों बता रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम मुख्तलिफ हरकत तो हमें करना ही है बच्चों, एक जगह तो हमको बैठना नहीं है। मतलब ये नहीं है कि बस चलते रहे, लेकिन हमारे जिस्म में हरकत होना जरूरी है। ये हमारे जिस्म को फुर्तीला रखने के लिए बेहद जरूरी है ना। हमको हरकत करनी है, उठना है, बैठना है, किसी चीज की मदद से आगे जानिब झुकना है, पीछे जानिब झुकना है। अगर आगे जानिब झुक रहे हैं, बाएं जानिब, दाएं जानिब, पीछे जानिब, ये हमारी वर्जिश हो गई, है ना। हम जो है वर्जिश करते हैं ना सुबह सवेरे, बिल्कुल इसी तरह हम वर्जिश करते हैं। क्यों कहते हैं रोजाना वर्जिश करना है? क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वर्जिश करने से क्या होता है? जी, हमारे जिस्म में ताकत आती है। क्या? फुर्तीला होता है हमारा जिस्म, फुर्तीला, हम चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं। उसी तरह बच्चों, हमको क्या करना है, हमारी हालत भी हमको सही रखनी है। खड़े रहने में हालत सही, बैठने में हालत सही रखनी है। तो आपने जो है हरकत देखे, हालत देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कवायद का मुजाहरा। कवायद सुना है आपने? कवायद क्या होता है? कवायद का मुजाहरा आप प्रकार करते होगे, पीटी का, फिजिकल एजुकेशन का परेड होता होगा, तो उसमें क्या करते होगे? उसमें, हाँ, हम मैदान में जाते हैं, हाइट के हिसाब से हमको खड़ा रखते हैं और एक हाथ का फासला रखते हैं। उसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम? देखो तस्वीर में, देखो नजर आ रहा है कि किस तरीके से है। ये भी प्रकार करना शुरू होने वाला है, ये उससे पहले कवर की जाती है, यानी, हाँ, ये सावधान की हालत है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सावधान। कवायद बच्चों मतलब हम जो है, हमारे प्रकार जो हम करने वाले हैं उसमें हम देखो कवायद करते हैं। पहले हम सावधान, हम तो किसी भी तरह खड़े रहते हैं, लेकिन जब हमारे हमको ऑर्डर आता है, हमें कहा जाता है सावधान, है ना, हमें कहते हैं सावधान, तो हम किस तरह खड़े हो जाते हैं? एकदम स्ट्रेट, सीधा, हाथों को भी नीचे, मुट्ठी बंद हमारी। तस्वीर में देखो बच्ची अगर आगे से देखेंगे तो किस तरह खड़ी है? सीधा खड़ी है, हाथ नीचे है, मुट्ठी बंधी हुई है। और अगर पीछे की जानिब देखेंगे तो देखो पीछे से भी सीधी सीधी खड़ी हुई है बच्ची, एकदम स्ट्रेट। सावधान में हम हिलते नहीं है, जरा भी नहीं हिलते। हम राष्ट्रीय गीत के लिए खड़े होते तो हम इसी तरह सावधान की हालत में खड़े रहते, हमको इसी तरह सावधान में खड़े रहना है। ये हो गई सावधान। सावधान के बाद और क्या होता है बच्चों? क्या होता है? जी,
हाँ बिल्कुल सही। देखो तस्वीर में नजर आ रहा है बच्ची कौन सी हालत में है, क्या कर रही है? विश्राम। बिल्कुल विश्राम। जब हम सावधान में रहते हैं तो हम टाइट एकदम सीधा स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कहते हैं विश्राम, करते होगे ना आप भी? बच्चों को बहुत मजा आता है ये करने, कवायद करने बहुत मजा आता है। विश्राम। विश्राम में क्या करते हैं बच्चों, हम अपना बायां पैर साइड में यानी बाजू में लेकर जाते हैं, उठाते हुए, ऐसा घसीटते हुए सरकाते हुए नहीं, पैरों को घुटने तक उठाएंगे, फिर बाजू में जाके रखेंगे। रखेंगे मतलब पटकते हैं ना हम पैर विश्राम करते हैं तो। जी, और जैसे ही पैर पटकेंगे पटकेंगे हम, हमारे दोनों हाथ पीछे की जानिब हो जाते हैं। देखिए तस्वीर में बच्ची आगे भी नजर आ रही है और उस पीछे भी कैसे कर रहे हैं। पीछे दाहिना हाथ नीचे होता है, बायां हाथ उसके ऊपर, हथेली के ऊपर। बंद नहीं रखना है, हमें हाथ खुला रखना है। तो ये है विश्राम की हालत। करते हो ना बच्चों? जी, जब हम कवायद करते हैं तो हम इसी तरीके से करते हैं। तो बच्चों हमने जो है अभी आपके सबक में जो है हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें जिस्म की मुनासिब हरकत, हमारे जिस्म की मुनासिब हरकत और मुनासिब हालत। तो चलिए हम इसे एक बार और कर लेते हैं यादें के तौर पर। देखिए हमने क्या सीखा, क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा कि हमें जिस्म की मुनासिब हमारी हरकत होती है। जैसे ये हरकत, इस तस्वीर में बच्चा आगे झुका हुआ है, सामने की जानिब झुका हुआ है, तो ये हरकत हो गई सामने की जानिब झुकना। इसमें जो है हमारे हाथ दाएं और बाएं जानिब है, हम थोड़ा सा बैंड हो रहे, झुक रहे हैं। ये हो गई बाजू की जानिब झुकना। जी, अगली हरकत में जो है हम पीछे की जानिब मुड़ेंगे, तो ये हो गई हमारी हरकत पीछे की जानिब झुकना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एड़ी के बल घूम रहे हैं, तो ये हो गई एड़ी के बल घूमना। जी, इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस तरीके से बल खाकर चलना। जिस तरह लाइन बनी हुई है उस लाइन पे, उस लकीर पर चलेंगे तो हम कहेंगे बल खाकर चलना। ये भी एक तरीके की हरकत है, इसमें भी हमारे पैर हाथ सब आज़ा इस्तेमाल होते हैं। इस हरकत को कहेंगे, इसमें पंजे की जानिब घूम रही है बच्ची, तो इसे कहेंगे पंजों के बल घूमना। ये भी मुख्तलिफ किस्म की हरकत है बच्चों, ये हमने देखा। इसके बाद जो है क्या देखा हमने, हरकत की नकल, जानवरों की चाल। ये थी खरगोश चाल, है ना, खरगोश छलांग। उसके बाद हमने देखा क्या, ये हरकत हो गई बतख की, यानी हम इसे कहेंगे बतख चाल। उसके बाद हमने देखा ये क्या, कंगारू छलांग, कंगारू की तरह। उसके बाद हमने देखा क्या, वेरी गुड, केकड़े की चाल। उसके बाद बंदर छलांग, क्या देखा हमने, बंदर छलांग। उसके बाद जो हमने क्या बच्चों, हमने तो अपनी हरकत देखी, फिर हमने वसाइल की मदद से की जाने वाली हरकत देखी। जैसे टप्पा पास, जमीन पर टप्पा पास, पैरों पर, पैर से मारकर टप्पा पास, पैर से मारकर जो है हरकत देखी। उसके बाद हमने देखा दीवार पर मारना। उसके बाद क्या देखा, पैरों से ढकेल कर पास करना। ये सब जो है मुख्तलिफ हरकत हमने देखी, ये हमने वसाइल की मदद से देखी। उसके बाद हमने क्या देखा बच्चों, उसके बाद हमने देखा मुनासिब जिस्मानी हालत। जिस्मानी हालत कि हमको देखो किस तरह हमको
खड़े रहना है, ये हमारे खड़े रहने की हालत है। इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं झुककर खड़े रहना है बेटा। बहुत समझने की बात है। हमें हमारे जिस्म में अगर हम, जी सर, तो ये सब हमने जिस्मानी हरकत और हालत देखी, हमने कवायद का मुजाहरा देखा, सावधान और विश्राम। अब बच्चों जो है हम अगला देखेंगे आपका घर काम। बच्चों आपका घर काम ये है कि आपको हमारे मुख्तलिफ जिस्मानी हालत, आपने आज़ा के नाम लिखने हैं और व्हाट्सएप पर आपको सेंड करना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।